فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ سابق چیف منسٹر کے سی آر کی جماعت BRS جو MLAs کی گھر واپسی کے سلسلے کو روکنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا۔ کیشو راؤ جو پہلے پارٹی چھوڑ دیے تھے، انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ دہلی میں صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے کی رہائش گاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کیے۔ لوک سبھا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کی موجودگی میں کیشو راؤ نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے کیشو راؤ کو پارٹی کھنڈوا پہنا کر ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کانگریس امور کی انچارج دیپا داس منشی اور کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین KC وینوگوپال، مدھو یاشکی گوڈ اور دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے موسیٰ فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو شروع کرنے کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ہی ندی کے کنارے پر بفر زون کو نشان زد کرنے کے علاوہ ندی پر تعمیر دہائیوں پرانے پلوں کا استحکام کا تجزیہ کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے جا رہے ہیں۔ موسیٰ ندی پر تقریباً 17 پلوں کے استحکام کا جلد ہی تجزیہ کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے لیے مجموعی ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے کنسلٹنٹس کو مدعو کیا گیا تھا۔ موسیٰ ندی کے 55 کلومیٹر پر محیط سائٹ ایریا کے لیے ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا۔ مختلف مقامات پر بنائے گئے 17 پلوں کے استحکام کا تجزیہ کرنے کے لیے موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہی۔ ان میں سے زیادہ تر پل دہائیوں پہلے تعمیر کیے گئے تھے۔ اگرچہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے تقریباً 10 سال قبل چند پلوں کے استحکام کا تجزیہ کیا تھا، لیکن مختلف اجزاء خاص طور پر ڈھانچے کے استحکام اور حفاظت کی جانچ کرنے کی ضرورت تھی۔ مثال کے طور پر پرانا پل 1578 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس نے موسیٰ ندی میں 1908 میں آئی طغیانی کو برداشت کیا تھا۔ ریاستی حکومت اب خوبصورتی اور سیاحت کو فروغ دینے سمیت مختلف کاموں کو انجام دینے کا منصوبہ بنا رہی۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس طرح کے کاموں کو انجام دینے سے پہلے ان تمام پلوں کے بارے میں تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا۔ ایجنسیوں کو مختلف پہلوؤں کی جانچ کرنی ہوگی اور 2 ماہ میں تفصیلی رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔ عہدیدار نے مزید کہا ہے کہ ان کی سفارشات کی بنیاد پر اعلیٰ حکام پلوں کی مرمت اور مضبوطی کے اقدامات پر غور کریں گے۔ CPI کے ریاستی سیکریٹری MLA کونانینی سامبا شیوا راؤ نے کہا ہے کہ پرانے تلنگانہ کے کسانوں کی مسلح جدوجہد نے آج کی علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ اس طرح تلنگانہ کے عوام کے خود مختار ریاست کے خواب کو پورا کرنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ کسانوں کی مسلح جدوجہد کے پہلے امر ڈوڈی کوموریا کا نام تلنگانہ کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ BC رائٹس ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام CPI اسٹیٹ آفس مخدوم بھون راج گوڑ ہال میں ڈوڈی کوموریا کی 78ویں یوم پیدائش بڑی ہی شان سے منائی گئی۔ دہلی کی ایک عدالت نے مبینہ شراب پالیسی اسکیم سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں عام آدمی پارٹی کے قائد منیش سسودیا اور BRS کی رہنما کلوا کنٹلا کویتا کی عدالتی تحویل میں 25 جولائی تک توسیع کر دی۔ قبل از منظورہ عدالتی تحویل کی مدت ختم ہو جانے پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کویتا کو عدالت میں پیش کیے جانے پر خصوصی جج کاویری باویجا نے ان کی تحویل میں توسیع کر دی۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی دہلی میں ہیں، جہاں وہ کانگریس کی مرکزی قیادت کے ساتھ صدر پردیش کانگریس تلنگانہ کے نئے صدر اور ریاست کابینہ میں توسیع کو حتمی شکل دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی دہلی میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کی۔ امکان ہے کہ کھڑگے TPCC کے نئے صدر کے نام کو آخری شکل دیں گے۔ پردیش کانگریس تلنگانہ کے کارگزار صدر B مہیش کمار گوڑ سے ملاقات کے بعد ریونت ریڈی دہلی روانہ ہوئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ گوڑ صدر پردیش
प्रदेश कांग्रेस के ओहदे की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बातचीत के दौरान डॉक्टर केशव राव की कांग्रेस में शमूलियत हुई और डॉक्टर केशव राव ने अपनी बेटी वो मेयर जीएचएमसी विजय लक्ष्मी गदवाल के साथ बीआरएस से इस्तीफा दे दिया था। कई हफ्तों के दरमियान चीफ मिनिस्टर का ये दूसरा दौरा दिल्ली रहा। नीट के इम्तिहान को मनसूख करने और एनटीए के मुंतजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद में तलबा यूनियनों की जानिब से तालीमी इदारों का बंद कामयाब रहा। बंद की कॉल से एक दिन पहले ही प्राइवेट स्कूलों ने रजाकाराना छुट्टी का ऐलान कर दिया था। सरकारी स्कूल और कॉलेज शुरू होते तलबा यूनियनों के कायदीन वहां पहुंचकर तलबा को स्कूलों से बाहर भेज दिया और क्लासों का बाइकआउट कर दिया और तलबा के साथ एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ नारे लगाए। ఎందరో మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయితే మీలాంటి చదువుకున్నోళ్ళకి ఫరక్ ఎట్లుంటుంది? ఉండదు కదా. అయితే చదువుకోనోళ్ళ ఒక క్వశ్చన్ మైనస్ అయితే తప్పు రాస్తే దానికి మైనస్ మార్కింగ్ వస్తుంది. అట్లాంటి ఎగ్జామ్ లో బైకి బై మార్క్స్ వచ్చినాయని వాళ్ళ ప్రతి ఒక్క స్కూల్ కి కాలేజ్ అన్నిటికీ బంద్. ఇది ఎందుకంటే నిరసనగా విద్యార్థులు అందరూ నీట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే స్కామ్ జరిగిందో క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయిందో దానికి మద్దతుగా ప్రతి अदाकारा और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मुबैना तौर पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कलविंद्र कौर का तबादला कर दिया गया। कौर को तादीबी इंक्वायरी मुकम्मल होने तक बेंगलुरु में एक यूनिट में मुंतकिल किया गया। कलविंद्र कौर ने नौमुंतखब रुकन असम्बली कंगना रनावत को इस वक्त थप्पड़ मारा जब वो दिल्ली रवाना होने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। सीआईएसएफ ने कौर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। रिपोर्ट में जराये के हवाले से बताया गया है कि कलविंद्र कौर को मुअत्तली का सामना है और उनको तादीबी इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 10वें रिजर्व बटालियन में तैनात किया गया। मजीद ये कि उन्हें इस यूनिट में इसलिए भेजा गया ताकि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात को यकीनी बनाया जा सके। जराये के मुताबिक एक सीनियर कमांडेंट लेवल का ऑफिसर वाक़े की तहकीकात कर रहा और कांस्टेबल उनके साथियों शिफ्ट इंचार्ज और एयरलाइन के कुछ एहलकारों के बयानात कलमबंद किए जा रहे जो इस दिन एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तहकीकात में कुछ वक्त लगेगा जिसके बाद मुनासिब फैसला किया जाएगा। बारबाडोस में फाइनल जीतकर आलमी चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, हेड कोच राहुल द्रविड़ समेत हिंदुस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोदी के साथ इस खुसूसी मुलाकात में बीसीसीआई के सदर राजरी बन्नी, सेक्रेटरी जय शाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोदी ने इन खिलाड़ियों से खुसूसी बातचीत की जो क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने सब के खेल की तारीफ की। इस मौके पर कप्तान रोहित शर्मा, टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ वज़ीर आज़म ने भी ट्रॉफी उठाई। हिंदुस्तानी खिलाड़ी वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के बाद मुंबई रवाना हो गए। टीम इंडिया की जीत का जुलूस मुंबई में शाम 5 से 7 बजे तक खुली बस में निकला। इसके बाद शाम 7:30 बजे हिंदुस्तानी टीम के लिए एक मुबारकबादी प्रोग्राम हुआ जिसके बाद खिलाड़ी अपने होटल में क़याम के लिए रवाना हुए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने ऐलान किया कि इस साल गगनयान मिशन के लिए 3 अहम टेस्ट किए जाएंगे। ये टेस्ट हिंदुस्तान के महत्वाकांक्षी इंसानी खलाई परवाज के प्रोग्राम के लिए अहम है। सोमनाथ ने सैयारों के दिफा के बैनुल-अक़वामी दिन की मुनासिबत से मुनक़िदा वर्कशॉप में आने वाले तजुर्बात के बारे में मालूमात दी। उन्होंने कहा है कि इस साल हमारे पास 3 अहम टेस्ट हैं। ये पहला बगैर पायलट गगनयान G1 मिशन है जो दिसंबर में तयशुदा
शुदा है। टेस्ट व्हीकल T2TV मिशन जो लॉन्च पैड पर हंगामी इस्कात हमल की नकल करने के लिए इस्कात का मंजर और पैड इस्कात टेस्ट का मुजाहरा करेगा। उन्होंने सैयारों के तहफ़्फ़ुज़ में आलमी ताउन की अहमियत को उजागर करते हुए 2029 अपोफस मिशन जैसे बैनुल अक़वामी मिशनों में हिस्सा डालने के लिए इसरो की आमदगी पर जोर दिया। उन्होंने जिक्र किया कि हिंदुस्तान नासा, ESA और JAXA जैसी एजेंसियों की क़ियादत में मुश्तरका मिशनों को आलात या दीगर मदद फराहम कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी मुल्क सैयारों के तहफ़्फ़ुज़ का जामे निज़ाम तैयार नहीं कर सकता और इसके लिए बैनुल अक़वामी ताउन ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम में SCO सरबराही इजलास के मौके पर चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के साथ एक अहम मुलाकात की, जिसमें सरहदी इलाकों में ज़ेर इल्तवा तातल को जल्द हल करने के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। डॉक्टर जयशंकर ने मुलाकात के बाद अपने पोस्ट में लिखा, आज सुबह आस्ताना में CPC पोलिट ब्यूरो के रुकन और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात की। सरहदी इलाकों के बाकी मानदा मसाइल के जल्द हल पर तबादला ख्याल किया। इस मकसद के लिए सिफारती और फौजी चैनल्स के जरिए कोशिशों को दुगना करने पर इत्तफाक किया गया। उन्होंने कहा कि LAC का एहतराम करना और सरहदी इलाकों में अमन को यकीनी बनाना जरूरी है। बाहमी ताल्लुकात के 3 अनासिर बाहमी एहतराम, बाहमी हसासियत और बाहमी दिलचस्पी हमारे दो तरफा ताल्लुकात की रहनुमाई करेंगे। सऊदी अरब में हजामों के लिए नए ज़ाब्ते जारी कर दिए गए हैं, जिसमें एक बड़ी पाबंदी भी आयद की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत बल्दियात की जानिब से हजामों के लिए जो नए क़वाइद जारी किए गए हैं, उनमें सैलून में बालों से जुओं को साफ करने के लिए मखसूस और जदा कमरा बनाने और मंजूर करदा आलात ही इस्तेमाल करने, कैंची और दीगर अशिया को इस्तेमाल से कबल साफ और सैनिटाइज करने की हिदायत की गई है, जबकि वो लाजमी तौर पर खालिस स्टेनलेस स्टील से बने हुए और चाहिए ताकि जंग ना पकड़ सके। इन नए क़वाइद के तहत बार्बर शॉप्स में जिस्म पर टैटू बनाने के आलात रखना या एक्वेपंक्चर की सुइयां का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया, जबकि बार्बर्स को अब होम सर्विस के लिए बाकायदा इजाजतनामा हासिल करना जरूरी करार दिया गया और घरों में बाल काटने की सर्विस का लाइसेंस बल्दी ऐप से हासिल किया जा सकता है। बार्बर शॉप्स में डिस्पोजेबल रेजर और अपैरन इस्तेमाल किया जाए और तमाम आलात और मुकाम बार्बर कुर्सी को इस्तेमाल के फौरन बाद तौर पर सैनिटाइज किया जाए, जबकि इस्तेमाल शुदा रेजर और अपैरन को महफूज तरीके से तल्फ किया जाए। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से मंजूर शुदा क्रीमें और दीगर अशिया ही इस्तेमाल की जाएं। मर्दाना सैलून्स में ख़वातीन का दाखिला ममनू होगा, ताहम वो ख़वातीन इससे मुस्तशना होंगी जो बच्चे, मुअम्मर या माजूर शख्स के बाल बनवाने के लिए उनके हमरा आएंगी, जबकि ख़वातीन के सैलून्स में तमाम मर्दों का दाखिला मना होगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट,
हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।